कर्मण्यधिकार वस्ते माँ फलेसु कदाचन। जी हाँ, आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ वो है श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत। श्रीमद् भगवत गीता का इम्पैक्ट इन टुडेज मैनेजमेंट। यस, द रेलेवेंस ऑफ महाभारत इन टुडेज मैनेजमेंट, द रेलेवेंस ऑफ महाभारत इन कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे, ये 5-4 साल पहले लिखी हुई किताब, लिखी हुई बुक अपने आप में एक मैनेजमेंट साइंस था। इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट्स बोथ. It was very much articulated by Sri Krishna, Lord Sri Krishna, and this message was given to Arjun, and through that message we are also learning from it. We also get empowered. Lots of management thoughts, lots of management process, they are using this particular theory of Mahabharata, this particular theory of Srimad Bhagavad Gita in a very efficient and proficient way. तो हम देखेंगे पहला थ्योरी क्या कहती है इसमें। द लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट पावर इन योर हैंड बट द एबिलिटी टू एम्पावर योर पीपल। जी हाँ, इससे ये हम समझते हैं लीडरशिप सिर्फ खुद के अंदर पावर रख के उसको इस्तेमाल करने की नहीं है, बट अपने टीम को एम्पावर करने की है। आज के वर्ल्ड में ये बहुत ही रेलेवेंस है। पावर सेंटर हम खुद अपने अंदर रख लेते हैं। एज ए बॉस वी थिंक चलो पूरा पावर मेरे पास है एंड आई एम द होल एंड सोल, सो आई विल रूल completely. So this is not the right way. आपका काम है guidance to your team. Your work is support to your team. Your work is motivate to your team. You are just delegating them. You are empowering them with lots of action oriented work. But behind the scene, your job is there. Like Lord Krishna, वो युद्ध के मैदान में हथियार कभी नहीं उठाए थे, लेकिन वो अर्जुन को एम्पावर्ड करते गए। जब अर्जुन की एक वक्त पे ऐसी स्थिति हो गई थी जब वो डर गए थे, उनके अंदर फियर फैक्टर आ गया था, हाउ विल फाइट विथ माई ओन पीपल, तब जाके श्री कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया, उनको गाइड किया, उनको सपोर्ट किया और उनको एक इमोशनल इंटेलिजेंस, उस समय की बात करेंगे आज के संदर्भ में, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की। एंड देन अर्जुन रियलाइज, यस दिस इज माई ड्यूटी एंड आई नीड टू परफॉर्म माई ड्यूटी। So the most important lesson, leadership is not only about power but an ability to empower others, अपने एम्प्लॉय को, इसमें कहा गया है। हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट टुडे। इफ यू सी चेंज मैनेजमेंट, द चेंज लीडर, देयर आर लॉट मेनी ऑफ चेंज लीडर इन द वर्ल्ड। Infosys led by Narayan Murthy is a change leader, you can say, right? Bill Gates, a change leader, you can say. These are the people who have changed the system completely because they remain on power, but they are given the power to their own employee, and they are empowered them, they are guided them whenever required, they supported them whenever required, and they motivated them whenever required. For that matter, Ratan Tata, the biggest example we have got in India. So we have learned first lesson number 2, strategizing. Strategy means utilizing the right resources at the right time. In modern system, if the management system, if you have to say, you have to find out you're the right person in your team who is capable and efficient enough to perform your duties, desired result, which is very much aligned to the goal. And the same thing which happened in the Mahabharata 5000 years back, जहाँ पे अभिमन्यु और घटोत्कच का एग्जाम्पल है। अभिमन्यु was in Mahabharata, went to Chakravyuh just to save his uncle Yudhishthir. अगर युधिष्ठिर नहीं बचते या युधिष्ठिर पे उसमें हमला किया जाता, वो मारे जाते, महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। घटोत्कच को कर्ण के सामने भेजा जाता है। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप घटोत्कच, कर्ण हैड नो ऑप्शन बट यूज हिज ओनली शक्ति अस्त्र विच ही हैड केप्ट टू यूज ऑन अर्जुन। तो in this scenario, if you see Lord Krishna in a very proper way, in a very management way, what he had done, he had used his 2 best resources to get maximum out of it. In the same fashion, a leader has to understand and they have to find out their best resources and take the maximum out of it. So this is the second lesson of Mahabharata which is relevant in today's scenario. A good mentor is worth an entire army. महाभारत में भी इसका रेलेवेंस है और काफी इम्पैक्टफुल रेलेवेंस है। जब श्री कृष्ण ने 2 ऑप्शंस दिए पांडवों को और कौरवों को, या तो आप मुझे ले लो,
I will be the part of one team, I will be the part of one group, or you can take the Narayani Sena. कंडीशन ये था कि I will not raise any weapon, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, I will not fight the battle. और हमारी नारायणी सेना जो लाखों की संख्या में कैपेबल है, एफिशिएंट है, नंबर्स ज़्यादा हैं, यू कैन टेक. हेयर द लीडरशिप शोन बाय अर्जुना. हेयर द दूरदर्शिता आप कह लो, वो अर्जुना की थी. उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को लिया, ना कि उनके फौज को. टुडे सिनेरियो व्हाट इज इट्स रेलेवेंस? ये कहती है, इंस्टेड ऑफ हैविंग द 10 पीपल यू शुड हैव द one strong person in your team. Recruit leader. Recruit the person who is having the leadership quality, the leadership acumen. They will create the atmosphere congenial and atmosphere compatible for your team. They will align the entire people, entire process to get the maximum out of team for the goal which you have fixed up. So the nutshell in the story is, a good mentor is worth an army. So you have to see the entire organization process, the structure in your team, in your surroundings, what type of people you are recruited and what type of people you have taken. Instead of going for numbers, go for quality. Quantity doesn't matter. Quality matters. उस समय भी, महाभारत के समय भी और आज भी. तो हम देखा इस टॉपिक में, नेग्लेक्ट नन. आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट हो या जो भी लोग हो, डोंट इग्नोर हिम और डोंट नेग्लेक्ट हिम. जस्ट बिकॉज कि ही इज नॉट और शी इज नॉट परफॉर्मिंग इन वन फील्ड डजंट मीन शी विल नॉट और ही विल नॉट परफॉर्म इन अदर फील्ड. महाभारत में इसका रेलेवेंस है नकुल और सहदेव के बारे में. नकुल और सहदेव में वैसे तो युद्ध के मैदान में ऑन फ्रंटल बेसिस पे बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया है, वी हैव नेवर सीन इन महाभारत का, बट उनका जो नॉलेज था इट वाज ट्रिमेंडस. ऑल्दो ये उनके खुद के भाई नहीं थे, इनके सौतेले भाई थे, फिर भी इनका जो इम्पोर्टेंस था फैमिली में रिमेन इंटैक्ट. इन्होंने कभी भी उनको साथ सौतेलापन का व्यवहार, स्टेप ब्रदरली व्यवहार नहीं किया. सेम थिंग गोज द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. Nakul was having the tremendous knowledge about the medicine and Sahadev was having the knowledge of the astrology. तो एक को मेडिसिन, एक को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था. भले ही फील्ड पे आके, फ्रंट पे आके नकुल ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, बट बिहाइंड द सीन ही हैड वर्कड अ लॉट. उन्होंने इतने बड़े सेना में जो भी बीमार होते थे, जिनको जख्मी होते थे, उनकी सहायता करते थे और उन्होंने इस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन किया. तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, दे आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, दे आर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे आर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे आर द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, दे आर इन द R&D डिपार्टमेंट और L&D डिपार्टमेंट, व्हाट यू से. हमें चारों डिपार्टमेंट में सामंजस्य बना के रखना होगा, कोरिलेशन बना के रखना होगा. एज ए लीडर यू हैव टू सी ऑल द फोर टीम आर वर्किंग इन ए सेम फैशन और नॉट. उसमें कोहेरेंट है कि नहीं, उसमें आपस में मोबिलाइजेशन है कि नहीं, ये चारों डिपार्टमेंट आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं. If you find one department is missing link with other department, your job is come front and please have the meeting with the same department and make the united team. आपको टीम को यूनाइट करना है, आपको हर डिपार्टमेंट इक्वल फोकस देने हैं. इट्स नॉट कि द सेल्स एंड मार्केटिंग इज ब्रिंगिंग रेवेन्यू, दे आर इम्पोर्टेंट. L&D is equally important because they are doing the job behind the scene. They are mentoring your people, they are making your people enabling your people for the better job. Finance team is managing the entire finance. They also see ratio how the business is coming and what the cost is there. So ROI is important. Return on investment is important. How much money you are investing on one call is important. HR is equally important. They are finding people from the field. They are taking the people into the company and they are nurturing them in their own way. So as a leader you need to understand. तो महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में जो हमने देखा, वही चीज आज के डेट में आप कोई भी बुक पढ़ लो, whatever book you want to see, if you want to read, you will find कहीं ना कहीं गीता का सार उसमें आपको दिखेगा. The relevance of गीता you will find in the book also. So आपके घर में जो गीता पढ़ी हुई है, प्लीज टेक आउट फ्रॉम द शेल्फ और उसे पढ़ो. स्टीफन आर कोवी से भी बेहतर लिखी हुई वो बुक. आप कोई भी राइटर, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर ऑफ द वर्ल्ड, आई विल से गीता इज समंदर. गीता, भगवत गीता में जो लिखी गई एक एक शब्द, एक एक वाक्य आज की डेट में रेलेवेंस है और आने वाले दिनों में उनका रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा. The way entire society and system are dwindling,
द इम्पैक्ट ऑफ गीता एंड रेलेवेंस ऑफ गीता। एक लास्ट लेसन मैं आपको दूंगा आज के संदर्भ में। जब इन्हें वनवास मिला था तो पांडव पांचों भाई वनवास गए थे और वहां पे ये बैठ करके सिर्फ आराम नहीं किए थे। उस समय इन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया था। उन्होंने वॉरफेयर के नए नए तरीके सीखे थे, नए नए टेक्निक सीखे थे। युधिष्ठिर ने डाइस के बारे में समझा था और काफ़ी चीज़ों उस समय उसने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज किया। एंड दिस इज अ टाइम वेर यू आर क्वारंटाइन कंप्लीटली। दिस इज अ टाइम वेर यू कैन लर्न अ लॉट, होन अप योर स्किल, डेवलप योर स्किल एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ मच बेटर वे। आपके अंदर बहुत शक्ति है, गॉट द ट्रिमेंडस पावर इनसाइड यू। जस्ट गेट आउट दोज पावर इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग टेलीविजन, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द नेटफ्लिक्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग द वेब सीरीज। सो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। गीता खत्म होने वाली चीजें नहीं है, श्रीमद् भगवत इतनी बड़ी ग्रंथ है अपने आप में। एक छोटा सा चीज मैंने ट्राई किया आपके लिए। आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसमें कमेंट डालिए और हमें आगे क्या टॉपिक पर बात करनी है आप वो भी डाल सकते हैं। विल ट्राई टू रिसर्च ऑन दोज टॉपिक एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू very much for your support. Thank you very much for your guidance. We'll get back to you again, and till the time, be in quarantine, learn a lot, understand yourself better, and be the good citizen. Humble raho, nice raho, be brave. Thank you. See you again. Bye bye. Take care.